پابلو ایسکوبار کولمبیا میں دہشت کی علامت اور منشیات سمگلنگ کا مافیا ڈان پابلو ایسکوبار نے بچپن میں کولمبیا کا صدر بننے کا خواب دیکھا. مافیا گینگ بن گیا. امریکہ کو منشیات سپلائی سے 1993 میں موت تک 24 ارب ڈالر کما چکا تھا. عروج کے زمانے میں اسمبلی کا رکن بھی بنا, حکومت سے سودے بازی بھی کرتا رہا, ججوں سمیت ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا, جرنیل اور صدر پر حملے بھی کروائے, شاہانہ جاگیر میں نایاب جانور پالے, گرفتاری کے لیے شاہانہ جیل بھی بنوائی. السلام علیکم, دس از می دعا مرزا اینڈ یو آر واچنگ براڈ کاسٹ ود دعا مرزا. چونکہ ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ کسی ایسے کرمنل یا ڈرگ ڈیلر کی جس سے ہم نوجوان نسل کو یہ روشناس کروا سکیں کہ یہ جرائم کا دھندا اور یہ گلٹری ورلڈ, اور جن کو دیکھ کر ہماری نوجوان نسل ٹک ٹاک کانٹینٹ سے یا کرائم تھرلرز دیکھ کر بہت انسپائر ہوتی ہے, بہت موٹیویٹ ہوتی ہے, اور ان کو بھی لگتا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں پستول ہو اور وہ ایک مافیا کا حصہ ہوں تو کیا ہی شاہانہ زندگی ہو. تو ایسے کیریکٹرز جو ماضی میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے اور دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے, ان کے ساتھ پھر کیا بیتی اور ان کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے کیسے زندگی گزاری, ایسی ایک کہانی آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. اور اس پروگرام کا مقصد متشدد رویوں کا سدباب اور نئی نسل کو روشناس کروانا ہے کہ ایسی لائف سٹائل جو بہت گلٹری لگتی ہے وہ کسی طور بھی اچھی نہیں ہوتی. پابلو ایسکوبار کا تعلق لاطینی امریکہ کے ملک کولمبیا کے شہر سے تھا. اسی مناسبت سے ان کے گروہ کو کارٹل کہا جاتا تھا. ایسکوبار میڈلن کے ایک متوسط گھرانے میں 1 دسمبر 1949 کو پیدا ہوا. یہ بچپن ہی سے اہل خانہ اور دوستوں کو کہتا تھا کہ میں کولمبیا کا صدر بنوں گا. عملی زندگی کا آغاز چوری کی وارداتوں سے کیا اور آہستہ آہستہ منشیات کے کاروبار سے منسلک ہو گیا. وہ بولیویا اور پیرو سے کوکا پیس خرید کر اسے صاف کرتا اور امریکہ میں اسمگل کر دیتا. ایسکوبار کے منشیات کے دھندے میں عروج کا سلسلہ 70 کی دہائی کے وسط میں شروع ہوا, جب ایسکوبار نے میڈلین کے ایک مقامی منشیات اسمگلر کو قتل کروا کر اس کے گینگ پر قبضہ کیا اور اپنے منشیات کے کام کو وسیع کر لیا. اس کے بعد سے آہستہ آہستہ امریکہ کو اسمگل کی جانے والی منشیات میں 80% کام ایسکوبار کے ہاتھ میں آ گیا تھا. اب منشیات کے کاروبار کے ساتھ اس نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اثر و رسوخ اور دولت کی بدولت 1982 میں وہ کولمبیا کی اسمبلی کا ممبر بن گیا. طاقت کے اس سفر میں ایسکوبار اپنے راستے میں کسی کو حائل نہ ہونے دیتا. اگر کسی جج, سیاستدان یا افسر سے اسے کام ہوتا تو وہ انہیں رشوت دے کر کام کروانے کی کوشش کرتا, اور اگر کوئی رشوت سے انکار کرتا تو وہ انہیں سرے عام قتل کروا دیتا. اس کا کہنا تھا کہ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے, اور اگر کسی کی کوئی قیمت ہے تو وہ پھر موت کا حقدار ہے. یعنی اگر کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے اور کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اسے موت ملنی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ اس کے ظلم کا شکار بننے والوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے. بعض اوقات تو وہ مرنے والوں کے خاندان کو بھی نہ بخشتا تھا. مشہور تھا کہ اگر وہ کسی کو راستے سے ہٹانے کی سوچ لیتا تو چاہے وہ شخص کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہوتا, اسے مار کر ہی رہتا تھا. بتایا جاتا ہے کہ وہ 1985 میں کولمبیا کی سپریم کورٹ پر جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی وہ ملوث رہا, جس میں کئی جج بھی مارے گئے. جبکہ ایک اور واقعہ جس میں صدارتی امیدوار کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی گئی, اس میں بھی وہ ملوث تھا. 27 نومبر 1979 کو اس نے ایک ہوائی جہاز میں بم رکھوا کر ایک صدارتی امیدوار کو مروانے کی بھی کوشش کی, لیکن وہ بچ نکلا. بدقسمتی سے جہاز میں سوار 110 لوگ اپنی جان نہ بچا سکے اور مارے گئے. یوں 1980 کی دہائی کے وسط تک وہ دنیا کے طاقتور ترین انسانوں کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا. منشیات کی اسمگلنگ کے عالمی مارکیٹ میں اس کی اجارہ داری 1993 میں اس کی موت تک برقرار رہی. فوربس میگزین نے اس کا ذکر دنیا کے 7 امیر ترین انسانوں میں کیا, اور اس وقت تک اس کی دولت 24 ارب ڈالر ہو چکی تھی. عروج کے زمانے میں اس کی تنظیم کی روزانہ آمدنی 6 کروڑ ڈالر تھی. اس طرح اس کا شمار تاریخ کے چند دولت مند ترین مجرموں میں ہوتا تھا. منشیات کی اسمگلنگ کے لیے ایسکوبار کے پاس کئی ذاتی طیارے اور ہیلی کاپٹر بھی موجود تھے. اپنے دور میں یہ شخص اس قدر طاقتور تھا کہ جب چاہتا کسی کو بھی قتل کروا دیتا, جہاں چاہتا منشیات پہنچا دیتا, اور اس مقصد میں کسی کو بھی حائل نہ ہونے دیتا. 1991 تک صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ پابلو ایسکوبار کے جرائم کی وجہ سے قتل کا عالمی شہر میڈلین کو کہا جانے لگا. اس موقع پر دارالحکومت پر امریکی CIA اور کولمبیا کی حکومت نے مل کر ایسکوبار پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا. جب ملکی اور غیر ملکی طاقتوں نے مل کر ایسکوبار کا گھیراؤ کیا تو اس نے بھی اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا کہ ہتھیار ڈال دیے جائیں.
क्योंकि अब घेरा तंग हो चुका था। हथियार डालने के लिए एस्कोबार ने कुछ इंतहाई दिलचस्प शराइत रखी, जिसमें से सरफहरिस्त ये थी कि उसे किसी जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि वो अपने लिए सैकड़ों मुरब्बे मील पर मुश्तमिल एक जेल खुद तामीर करवाएगा, क्योंकि वो बहुत अमीर था और किसी हुकूमती एहलकार को उस जेल के आसपास 12 मील के इलाके में भी दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। उसका ये भी कहना था कि मुल्क के आइन में तब्दीली की जाए ताकि उसे किसी दूसरे मुल्क और खसूसन अमेरिका के हवाले ना किया जा सके, जबकि एक जर्नैल की सुबुकदोशी का मुतालबा भी किया था। एस्कोबार ने हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात के दौरान ही कैथेड्रल के पहाड़ी इलाके में अपनी जेल के लिए जगह का इंतखाब किया और फिर अरबों डॉलर की दौलत में से कुछ हिस्सा उसकी तामीर के लिए वक्फ कर दिया और जोरों शोर से इसकी तामीर भी शुरू हो गई। है ना ये बड़ी दिलचस्प बात कि एक मुजरिम खुद अपनी जेल का इंतखाब कर रहा है और उसने मुज़ाकरात रखे हैं कि मैं अपनी मर्जी से जेल बनवाऊंगा और 12 मील के फासले में कोई भी वो नहीं आ सकेगा। सो आगे चलते हैं। जून 1991 में जब हुकूमत ने आइन में तरमीम कर दी तो एस्कोबार ने अपनी जाती जेल के बारे में हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर इतला दी। इस जेल के गिर्द 10 फुट ऊंची बाड़ लगाई गई और इसके कंपाउंड के गिर्द बिजली वाली खारदार तार की 15 तहें बिछाई गई। उसकी निगरानी के लिए 60 टावर तामीर किए गए उसके आसपास, जिन्हें एस्कोबार के गार्ड चौकियों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उसने गार्ड भी अपने रखवाए क्योंकि उसने ये मुतालबा रखा था कि गवर्नमेंट का कोई एहलकार उसके आसपास नहीं आएगा और ये 12 मील का फासला था। एस्कोबार अपनी जेल में दाखिल हो गया और अपने सैकड़ों साथियों के साथ यहाँ पर मजे की जिंदगी गुजारने लगा। इस जेल में दुनिया की तमाम सहूलतें तफरीहात दस्तयाब थी और ये भी कहा जाता है कि 1994 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत किए जाने वाली कोलंबिया की टीम ने भी रवानगी से पहले एस्कोबार की जेल का दौरा किया था और खिलाड़ियों को यहाँ 5 स्टार होटल जैसी आसाइशें फराहम की गई थी और यहाँ कोलंबिया की हसीन तरीन मॉडल्स और अदाकारों ने भी बाकायदगी से आना जाना था। एस्कोबार को सरकारी जेल कबूल नहीं थी। जब हालात सख्त कशीदा हो गए तो आखिरकार हुकूमत ने भरपूर कुव्वत से एस्कोबार की जेल पर धावा बोल दिया। एग्जैक्टली वो पॉइंट है जिसकी वजह से स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इतनी दौलत होने के बावजूद, इतना असर रसूख होने के बावजूद, आइन में तब्दीली के बावजूद, ये वो दिन है जब हुकूमत ने ये फैसला किया कि अब एस्कोबार को अपनी तहवील में लेना चाहिए और अब इसका सारा ये जो ड्रामा रचाया हुआ है, ये ताकत का नशा है, तोड़ना चाहिए। तो इस दौरान शदीद लड़ाई के दौरान वो अपने करीबी साथियों के हमरा फरार होने में कामयाब हो गया। ये बदनाम ज़माना मुजरिम बिलाखिर एक गुंजान आबाद इलाके में पुलिस कमांडो से तन्हा मुकाबला करते हुए गोली का निशाना बन गया। कोलंबिया की हुकूमत ने फैसला किया कि उसे आम जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस खौफ से एस्कोबार ने जेल से फरार होने का फैसला किया और कहीं नामालूम जगह पर छुप गया। 1990 की दहाई में अमरीकी स्पेशल फोर्सेस और इंसदाद मंशियात के इदारे कोलंबिया में ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार को कत्ल करवाने के लिए मुसल्लह गिरोह की सरपरस्ती के लिए हुकूमत ने 2 बड़े नाम सोचे और जो 2 बड़े नाम इस ग्रुप का हिस्सा बने वो एस्कोबार के साबिक मुलाजिम थे। अब ये वो स्ट्रैटेजी थी जिससे एस्कोबार को काबू किया जा सकता था। एस्कोबार को तलाश करने वाले 2 गिरोह अमरीकी स्पेशल फोर्स और उसके दुश्मन उसे हर तरफ ढूंढ रहे थे। 2 दिसंबर 1993 को इसके ठिकाने का इल्म हुआ और तमाम फोर्सेस उसके खिलाफ एक्शन के लिए मज़कूरा जगह पहुंच गईं। कहा जाता है कि फोर्सेस और एस्कोबार के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और इसके नतीजे में वो मारा गया। So the story is ended here। और एक्चुअली ये पता चलता है कि दौलत हो, नशा हो, लेकिन अगर आप गलत काम करते हो, आप जराइम से वाबस्ता हो, आप लोगों के लिए हार्मफुल हो, तो अ डे कम्स जब आप ऐसे बेमौत मारे जाते हैं। जबकि ये बात भी मशहूर है कि उसने खुदकुशी की, लेकिन एक्चुअली वो पुलिस मुकाबले का निशाना बना। उसकी ज़ाती जेल आज भी मौजूद है, लेकिन अब उसे लावारिस मुअम्मर अफराद की रिहाइशगाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी ज़िंदगी में तो ये किसी काम नहीं आ सकती थी शायद, और उसने ज़िंदगी भर ड्रग डीलिंग की, लोगों को नुकसान पहुंचाया, कत्लो गारत की और ये समझता रहा कि हर इंसान की कीमत होती है। लेकिन आज उसी की जेल में मुअम्मर अफराद वहाँ पर अपनी पनाह लिए हुए हैं। 1997 में वो जो 2 गिरोह थे जिनको जो साबिक मुलाजिम थे एस्कोबार के, जिनको अमरीकी फोर्सेस ने एक्चुअली हायर किया था टू ट्रेस एस्कोबार, उसकी कोख से मंशियात के कारोबार से वाबस्ता यूनाइटेड डिफेंस नामी दहशतगर्द फोर्सेस ऑफ कोलंबिया गिरोह ने जन्म लिया, जिसने अगले कई साल तक बड़े पैमाने पर कत्लो गारत की। अपने अरूज के ज़माने में एस्कोबार ने दारुल हुकूमत बोगोटा से 250 किलोमीटर के फासले पर कायम 8 मुरब्बा मील पर फैली पुरतायुश जागीर में शानदार महल तमीर कर रखा था।
उसे नायाब चरिंद परिंद जमा करने का बड़ा शौक था। अपने शौक की तस्कीन के लिए अपने जाती चिड़ियाघर में उसने दरियाई घोड़े, हाथी, ज़राफ़े, फ्लामिंगो, ज़ेबरे और कैंगरू भी पाल रखे थे। पाब्लो की मौत के बाद कोलंबियन हुकूमत ने जागीर किसानों में तकसीम कर दी। कुछ जानवर और परिंदे आजाद कर दिए गए, जबकि मुख्तलिफ जानवर कई ममालिक के चिड़ियाघरों को अतिया कर दिए गए। लेकिन अमरीकी रियासत से मंगवाए गए 4 दरियाई घोड़े एस्कोबार की मौत के बाद भी बरस बा बरस मकामी आबादी और मवेशियों को नुकसान पहुंचाने के बाइस कोलंबिया की हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बने रहे। उनकी तादाद तकरीबन 40 तक बढ़ चुकी थी। तब उन्हें गोली मारकर हलाक करना पड़ा, क्योंकि अब वो कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह थे। एस्कोबार के बारे में कई कहानियां भी इस खत्ते में आम हैं। एक कहानी बताती है कि वो ऐसा अमीर आदमी था जिसके अरबों रुपए हर साल चूहे खा जाते थे, और फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वेबसाइट द जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पैब्लो एस्कोबार अपने अच्छे दिनों में एक हफ्ते में 42 करोड़ डॉलर कमाया करता था। कैन यू जस्ट हियर इट, 42 करोड़ डॉलर। और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। पैब्लो एस्कोबार के भाई और उसके ड्रग माफिया के अकाउंटेंट के तौर पर काम करने वाले दी रॉबर्ट एस्कोबार ने अपनी किताब में इंकशाफ किया कि पैब्लो एस्कोबार की कमाई इस कदर अंधाधुंध थी कि रकम जखीर करने के लिए जगह ढूंढना मुश्किल हो जाता था। नोटों से भरे हुए थैले कोलंबिया के जंगलों में, वीरान इमारतों के तहखानों में, गुमनाम गोदामों में और बाज़ औक़ात तो गैंग के कारिंदों के घरों में भी रखे जाते थे। ऐसी जगहों पर रखी गई रकम में से हर साल तकरीबन 2 अरब डॉलर चूहों की नजर हो जाते थे। लेकिन पैब्लो एस्कोबार की दौलत का मामूली ये आलम था कि उसे इस नुकसान की कोई फर्क नहीं पड़ता था। रॉबर्टो का कहना है कि उनके पास दौलत इस कदर ज्यादा थी कि उसे महफूज रखना भी बड़ा मसला बन चुका था, क्योंकि बैंक्स में वो इस तरह के पैसे नहीं रखता था। इसी तरह एस्कोबार के बेटे हुआन एस्कोबार ने भी एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया और उस पर उन्होंने हैरत अंगेज इंकशाफ किया। उनका कहना था कि जब उनके वालिद अंडरग्राउंड थे तो एक बार उन्हें सर्दी से बचने के लिए आग जलाने की जरूरत पेश आई। वो जिस जगह छुपे हुए थे वहाँ कुछ और दस्तयाब न था, लिहाजा उन्होंने कुछ थैले खोले और नोटों का ढेर लगाया और उसे आग लगा दी ताकि कमरे में कुछ गर्म हो जाए। हुआन पैब्लो का कहना है कि इन नोटों की मालियत तकरीबन 20 लाख डॉलर थी। रॉबर्टो एस्कोबार के मुताबिक नोटों की गड्डियों को महफूज करने के लिए हर महीने $2500 के रबड़ के छल्ले मंगवाए जाते थे। लेकिन इन गवाहों के अलावा सितंबर 2020 में एस्कोबार के भतीजे को एक ख्वाब ने बैठे बिठाए अरबपति बना दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक पैब्लो एस्कोबार के भतीजे निकोलस एस्कोबार को ख्वाब आया जिसमें उन्हें घर की दीवार में झांकने का इशारा किया गया। उसने कोलंबिया के शहर मेडलिन में वाक़ अपने घर की दीवार तोड़ी तो उसमें से $2 करोड़ बरामद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इतनी खती रकम एक प्लास्टिक बैग में डालकर दीवार के अंदर छुपाई गई थी। निकोलस ने मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ख्वाब में बताया गया कि रकम की तलाश के लिए मुझे घर की कौन सी दीवार के अंदर देखना है। ये रकम मेरे अंकल ने हुकाम से पोशीदा रखने के लिए दीवार में छुपाई थी। पैब्लो एस्कोबार के एक बेटे ने एक बरतानवी सीक्रेट एजेंट के पास परवरिश पाई थी, जिसे एजेंट ने अपनी फायरिंग से उसकी वालदा की हलाकत के बाद गोद लिया था। उस बेटे रॉबर्टो एस्कोबार ने अपनी किताब में लिखा है कि जब ये पता चला कि उनका बाप वो शख्स है जिसने सैकड़ों लोगों का कत्ल किया और मायूसी फैलाई, तो उन्हें एक किस्म का बोझ और दर्द महसूस हुआ। जस्ट इमेजिन द पेन कि जब किसी भी बच्चे को जो परवरिश पा रहा है और सोसाइटी का पार्ट बन रहा है, जब उसे अपने बाप के बारे में ये पता चले कि वो दहशत की अलामत था, वो मुजरिम था और उसने कई लोगों की जान ली है, तो वो क्या दर्द होता है कि वो सोसाइटी में खुद को मिसफिट फील करता है। और जो इनका इंटरव्यू है उसमें ये क्लियरली बताते हैं कि उन्हें बहुत दिल पर बोझ महसूस हुआ। उन्होंने अपनी एक किताब में भी ये बताया कि पैब्लो एस्कोबार की लाखों डॉलर की वो रकम जो कि गायब है, उस रकम की मजीद मालूमात के बारे में उन्हें गोद लेने वाले वालिद ने कुछ इशारे दिए थे जिन्हें वो सुलझाने में भी कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये पैसा अगर मिल भी जाता तो उसे फलाही इदारों को दे देना चाहिए। चूँकि उन्होंने पैब्लो एस्कोबार के घर पे परवरिश नहीं पाई तो वो ये दर्द दिल रखते थे कि अगर उनको पैसा मिल भी जाता तो वो खुद ना रखते। पैब्लो एस्कोबार की ज़िंदगी पर हॉलीवुड में कई फिल्में भी बनी हैं, जबकि नेटफ्लिक्स पर एक पूरी सीरीज़ भी मौजूद है। आई होप कि आज मेरी ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपको ये अंदाज़ा तो लाजमी हुआ होगा कि अगर ताकत मिल भी जाए तो चूँकि एक दिन वो आना है जब आपने इस दुनिया से जाना है, तो ज़िंदगी हमेशा ग्रेसफुल होनी चाहिए और आने वाली नस्लों के लिए हमें मशाले राह बनकर रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ आपकी नस्लें भुगतती हैं। और हमेशा मैंने तो यही सुना है कि माँ बाप इसलिए रकम समेटते हैं कि आने वाली जनरेशन्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक तो बदकिस्मती पैब्लो एस्कोबार के साथ ये हुई कि उसके बेटे को उसकी रकम नहीं मिल सकी। अलबत्ता ये ख्वाब ने उसके भतीजे को अरबपति भी बना दिया, लेकिन उसके बेटे पर जो दर्द है
جو اس کے دل پر بوجھ ہے شاید وہ کبھی نہیں مٹ سکے گا، کیونکہ اس کے باپ کے کرتوت کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور وہ ماضی کا ہمیشہ حصہ رہیں گے. اس لیے اس کو لگتا ہے کہ اگر اس کو مل بھی جاتی وہ رقم تو اس کے کسی کام کی نہیں تھی. سو کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اور ایسی موت سے وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو شاید یہ کہانی بھی اس کی ایک زندہ مثال ہے. I'll come up with another episode. Stay tuned. اللہ نے کہا.